Hello everyone and welcome to Geeks to Geek School. In this video, we are going to solve a problem using recursion approach. Okay, so first of all, we are going to see the problem, then understand the approach to solve the problem. In this question, basically, I'm going to talk about two recursive approach and both of them are optimized solution. Okay, we are also going to discuss unoptimized, like not efficient solution that you can just understand, but you're not going to write the code for that. Okay, so let's start. So here you can see this is the question that you are given two numbers. We are given two numbers, okay? One, yeah. So yes, let's start with the question. Given two numbers, find the GCD of two numbers, okay? So GCD, that is greatest common divisor, or you can also say HCF. I hope that आप सभी लोगों ने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा होगा how to find HCF or GCD. So now we have to write the code to find HCF or GCD, okay? So let's see the example first. कि यहाँ पे दो example दे रखे हैं. Int a is equals to 4, b is equals to 14, and the greatest common divisor of 4 and 14 is 2, okay? Explanation: 2 is the greatest number that divides both the numbers, okay? Another example is 7 and 5, and 7 and 5 का greatest common divisor है 1. Let's also see the expected time complexity and space complexity. Time complexity is big O of log of max a comma b, and space complexity is big O of log of maximum of a comma b. Okay, so let's first talk about the inefficient approach. So आप लोग स्कूल में क्या करते थे? Whenever you have to find the greatest common divisor, let's be first take the example. इससे थोड़ा different example लेती हूँ. Let's see, a is equals to 9 and b is equals to 18. So अब आप स्कूल में कैसे निकालते थे? आप a के फैक्टर्स निकालते थे. a is equals to 9 and इसको आप लिख दोगे 3 into 3, right? And b के लिए आप क्या करोगे? b is also equals to 18 and इसके डिवाइजर्स आप लिख दोगे 3 into 3 into 2. and फिर आप क्या करते हो? आप कॉमन निकालते हो. So एक इंटरसेक्शन आप कह सकते हो, इंटरसेक्शन निकालते हो या कॉमन निकालते हो. तो आपने लिख दिया यहाँ GCD is 3 into 3 which is 9. ठीक है, ऐसे आप स्कूल में निकालते थे ना. इसी चीज को अगर मैं आपको बोलूँ कि GCD निकालो, तो आप इसी चीज को कंप्यूटर में एनालाइज करने की कोशिश करोगे कि ठीक है, मैं 9 के फैक्टर्स निकाल के एक एरे में स्टोर कर दूं, 18 के फैक्टर्स निकाल के एक एरे में स्टोर कर दूं, एंड उनके इंटरसेक्शन का एक कोड होता है, इंटरसेक्शन का कोड लिख दूं, एंड देन वी कैन फाइंड दैट. बट उस केस में द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मोर. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस अप्रोच. Now I'm going to talk about another approach that is also called as Euclidean algorithm. So हम उस approach की बात करेंगे and then उसको और थोड़ा सा improvise करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, cool. So as you can see, now we'll start with the Euclidean approach. See, let's take the example again. A is equals to, okay, just give me a minute. Okay, a equals to 9 and b equals to 18. Okay, so सबसे पहले the first steps is इसकी अप्रोच मैं आपको भी समझाती हूँ. ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द अप्रोच एंड उसके बाद फिर हम बेस कंडीशंस की भी बात करेंगे. ठीक है, अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे GCD निकालना है, तो द अनदर अप्रोच इज कि मेरे पास दो नंबर हैं एंड मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करती हूँ. कब तक? जब तक या तो एक नंबर जीरो ना हो जाए या दोनों नंबर इक्वल ना हो जाए. तब तक अगर मैं ऐसा करती रहूं तो मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल इन दिस केस, एज आई टोल्ड यू कि बेस कंडीशन क्या होगी. सबसे पहली होगी कि अगर मेरा a इक्वल टू 0 हो गया, अगर मेरा a इक्वल टू 0 हो गया, देन इन दैट केस मैंने कह दिया रिटर्न b. तब मैंने कह दिया कि b मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है. सिमिलरली अगर मेरा b इक्वल्स टू 0 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया इस प्रोसेस में, तब मैं कहूंगी रिटर्न a, क्योंकि उस हिसाब से मेरा a ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है. ठीक है ना. अगर मेरा a इक्वल टू b हो गया, देन इन दिस केस अगेन मैं क्या करूंगी? मैं रिटर्न कर दूंगी a. ठीक है, मैंने क्या बोला कि मेरी 3 बेस कंडीशन होंगी. वो ये होंगी कि हम माइनस करते रहेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते रहेंगे. कब तक? जब तक या दोनों वो इक्वल ना हो जाए. अगर वो दोनों इक्वल हुए तो आप a रिटर्न करोगे, या फिर जब तक दोनों में से एक जीरो ना हो जाए.
अगर दोनों में से एक 0 हो गया तो आप दूसरा नंबर रिटर्न कर दोगे, ठीक है। नाउ अगेन आप माइनस वाला चीज कैसे कंसिडर करोगे, आप ये देखोगे कि अगर इफ योर आपका a जो है वो ग्रेटर देन b है, लेट मी राइट इट समवेयर एल्स, ओके ओके, इफ योर a इज ग्रेटर देन b, अगर आपका a b से बड़ा है तब आप क्या करोगे, आप सीधे रिटर्न स्टेटमेंट ही लगाओगे, क्योंकि आप कॉल करोगे बेसिकली रिटर्न, आप कॉल करोगे किसको, आप जीसीडी को अगेन कॉल करोगे, मान लो जीसीडी हमारा फंक्शन है, ठीक है, एंड आप यहाँ क्या करोगे a माइनस बी कॉमा बी, ठीक है। एल्स आप क्या करोगे, एल्स आप रिटर्न करोगे जीसीडी ऑफ a कॉमा बी माइनस ए, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो मैंने लिखा है, ठीक है। a 9 है, b 18 है। सो जैसे ही आप इस कोड में एंटर करोगे, आप कोड में एंटर यहाँ से कर रहे हो और कोड में एग्जिट यहाँ से कर रहे हो, ठीक है। सी आप एंटर करोगे, क्या a इक्वल्स टू 0 है, नो, b इक्वल्स टू 0 है, नो, a इक्वल टू b है, नो, क्या a इज ग्रेटर देन b, नो, हम एल्स में आ जाएंगे सीधे, हम क्या करेंगे, अब जीसीडी को कॉल करेंगे। सो बेसिकली पहली हमारी जो कॉल थी, पहली जो हमारी कॉल थी वो थी, मैं सिर्फ g लिख दे रही हूँ, a कॉमा, ओके, मैं सिर्फ g लिख दे रही हूँ, इंस्टेड ऑफ जीसीडी आई एम जस्ट राइटिंग g, ठीक है। पहली मेरी कॉल थी g ऑफ 9 कॉमा 18 को, ठीक है। आप इस वाले सेक्शन में b इज ग्रेटर देन a बिकॉज, तो आप क्या करोगे, आप दूसरी, आप यहाँ से कॉल लगाओगे, आप यहाँ से कॉल लगाओगे g ऑफ किसको, a एज इट इज है, और b क्या हो गया, b माइनस a, 18 माइनस 9 इज 9। ना जब आप इस वाली कॉल लगाओगे तब आप यहाँ वापस से फंक्शन के अंदर आओगे, a इक्वल टू 0, नो, b इक्वल टू 0, नो, a इक्वल टू b, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, एंड यहाँ से हम a रिटर्न कर देंगे, a रिटर्न कर देंगे, बेसिकली आप 9 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ से 9 रिटर्न कर दोगे, एंड ये भी आपने एक रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा था, ये वाला स्टेटमेंट भी आपने एक रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न के आगे साथ लिखा था, तो यहाँ से जो नीचे से आंसर आया वही हम यहाँ रिटर्न कर देंगे, तो हम 9 रिटर्न कर देंगे, एंड ये बेसिकली मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा, ठीक है। नाउ लेट मी अगेन डू वन थिंग, लेट मी जस्ट राइट इट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। सो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दैट इफ माई a इज इक्वल टू 0, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे b, ओके। इफ माई b इज इक्वल टू 0, देन उस केस में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे a, ओके ओके। इफ आर a इज इक्वल टू b, then in this case what you are going to do is you are going to return a, ठीक है। and last में आप चेक करोगे if one number is greater than another number, so what you are going to do is you are going to check if your a is greater than b, if your a is greater than b, then आप कॉल करोगे return a minus b comma b, एंड लास्ट में आपका स्टेटमेंट रहेगा एल्स रिटर्न a कॉमा b माइनस ए, ठीक है। मैंने सारे स्टेटमेंट लिख दिए, अब इसको हम रन करके देखते हैं। a को लेते हैं हम 4, ठीक है, a को लेते हैं हम 4 एंड b को लेते हैं हम 14, ठीक है। अब हम कॉल करके देखते हैं, एक स्टैक बनाते हैं रिकर्सिव कॉल के में जिस तरीके से हम यूज करते हैं। सो बेसिकली आपने एक स्टैक बनाई, मेमोरी स्टैक, एंड आपने मेन से कॉल किया इसको, ठीक है, मेन से इस फंक्शन को कॉल किया। कॉल कैसे लगी, आपने मान लो इस फंक्शन का नाम g है अभी, ओके, g ऑफ 4, 14, ठीक है, a, b। नाउ यू आर गोइंग टू चेक फ्रॉम हियर दैट क्या a इक्वल्स टू 0 है, नहीं, b इक्वल्स टू 0 है, नहीं, a इक्वल टू b है, नहीं, क्या a इज ग्रेटर देन b, 4 इज ग्रेटर देन 14, नो इट इज नॉट, अदरवाइज
आप क्या करोगे a कॉमा b माइनस ए। सो आपने फिर से कॉल लगाई, a आपका एज इट इज रहेगा एंड b क्या हो जाएगा b माइनस ए, 14 माइनस 4 10। कूल। अगेन यू आर गोइंग टू कम इन दिस कोड, आपने बेसिकली अगेन कॉल लगाई, आप फिर से ये वाली एल्स वाली कंडीशन में आओगे, अगेन आप a कॉमा b माइनस ए को कॉल लगाओगे। सो अगेन a क्या है आपका 4 एंड b माइनस ए 10 माइनस 4 इज 6, ठीक है। अगेन आप इसी वाली एल्स में आओगे, अगेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू कॉल इट 4 कॉमा 2, 6 minus 4 is 2, right? Now when you will call this, now your a is greater than b. So अब आप इस वाले सेक्शन में आओगे, इस वाले में, okay? So अब आप क्या करोगे a minus b comma b. So a minus b is 4 minus 2 is 2, okay? So you are going to do this 2 comma 2, ठीक है। अब आप जब इस कॉल को लगाओगे तो a इक्वल टू b होगा, तो यहाँ से आपको a रिटर्न हो जाएगा। So basically ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, राइट? 2 रिटर्न करेगा। ना दिस फंक्शन, ये भी आपका रिटर्न के आगे ही लिखा होगा ये कॉल, तो ये भी यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा, ये भी 2 रिटर्न, दिस ऑल्सो विल रिटर्न 2 एंड दिस विल एट द एंड विल रिटर्न 2। तो आपके मेन फंक्शन के पास क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर 2। आई होप ये अप्रोच समझ में आई होगी आपको, ओके। इफ यस देन इट्स कूल। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसी अप्रोच को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करूंगी एंड आपको फिर समझ में आ जाएगी दूसरी अप्रोच, ठीक है। मैं यही दूसरी अप्रोच को भी इम्प्रोवाइज कर देती हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी अनदर अप्रोच, ठीक है। अब आप दूसरी अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। सो दूसरी अप्रोच इससे थोड़ी और सिंपल है, उसमें हम क्या करेंगे, हम इतनी सारी बेस कंडीशंस और इतना सब कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं। सी इन दैट अप्रोच व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम मॉड्यूलस का यूज करेंगे। ये आपकी यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, इसी में आप instead of using this minus you can use modulus approach also, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे gcd, ओके आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे gcd, ओके इसमें आप 2 इनपुट लोगे, int a int b, ठीक है। now what you are going to do is आप यहाँ पे बोलोगे if your b is equal to 0, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रिटर्न a कर दोगे। ये तो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या अप्रोच होगी, बेसिकली आप कॉल करोगे और आप रिटर्न भी करोगे जो भी आंसर आएगा उसको, या सो जो आप दूसरी कॉल करोगे वो आप इस तरीके से करोगे, रिटर्न जीसीडी। अब आप बेसिकली मॉडुलस का यूज करोगे इन प्लेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो आप क्या करोगे, a कॉमा b मॉडुलस a, ओके ठीक है। सो ये आपका सिर्फ इतना सा कोड आपका वर्क कर जाएगा, सिर्फ इतना सा कोड वर्क कर जाएगा। लेट मी जस्ट रन दिस एंड शो यू। a 4 है, b 14 है, ठीक है। मेन से आपने कॉल किया, ठीक है, जीसीडी को, जीसीडी एंड a 4 है, b 14 है, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस। b इक्वल टू 0 है, नहीं, आपने फिर से जीसीडी को कॉल लगाया एंड जो भी आंसर आएगा आप उसको रिटर्न करोगे। a क्या किया आपने, a आपने 4 ही रखा, ओके, एंड b क्या किया आपने 14 मॉडुलस 4। अब आप अगर 14 मॉडुलस 4 निकालोगे, 14 मॉडुलस 4 निकालोगे, इफ यू विल फाइंड दिस, सो बेसिकली व्हाट यू विल गेट 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 बिकॉज आपको पता है मॉडुलस आपको क्या करता है, मॉडुलस आपको रिमाइंडर देता है, राइट। सो ये हो गया, राइट। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू ओके, या सॉरी, आई डिड अ स्मॉल मिस्टेक ओवर हियर। यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ b आएगा, b आएगा, b कॉमा b मॉडुलस a, ठीक है। सो लेट मी डू दिस, ओके लेट मी राइट 14 ओवर हियर, ओके 14 कॉमा 2। ना अगेन जब आपने इसको कॉल किया b 0 नहीं है, तो आप इस वाले स्टेटमेंट पे आओगे, आप क्या करोगे, जीसीडी b की वैल्यू क्या है 2 एंड b मॉडुलस a 14 मॉडुलस 2 विल बी 0। जब आप ये कॉल लगाओगे तो आपका b इक्वल टू 0 हो गया एंड यहाँ से आपको a रिटर्न करना है। a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से आप 2 रिटर्न करोगे, अगेन आप 2 रिटर्न करोगे। सो फाइनली आपके मेन के पास क्या आंसर आएगा,
you will get 2 as an answer. Okay, so I hope आपको दोनों अप्रोच समझ में आ गई होगी. I'll write the code for this because this is a little bit shorter and more optimized one. Okay, cool. So basically that was all about the algorithm part. Okay, now let's move to the coding part. Cool. So let's start writing the code. Okay, so let me just create a function, and this time my function will return an integer, so that's why the return type will be int. Okay, public static int and GCD. Let me just name it as GCD, and here I will have two number, int a comma b, int b. Okay, so what I have to do is I have to first write the base condition. If my b is equals to 0, then in that case what I have to do is I have to just return a, else I have to return what? I have to just make another call. Okay, return, basically I am dividing my main problem into sub problem. Return GCD of b comma b modulus a. That's how I am dividing my main problem into smaller problems. Okay, now once I have written this, this is like the overall code to find the GCD. Now you can understand that this code is really small, and if I would have written that code, that finding the prime factors of both the numbers and then putting them in array and then finding the intersection, all of that will take much more time and much more space as well. Okay, so let's do one thing. Let's just call this function. So let's just first create two integers. Int a is equals to 4 comma b equals to 40. Okay, and let's just call this function GCD, and the two numbers that I'm going to pass over here is a comma b. Okay, so I hope if I'll run this, I will get the output. Let's see if we will get any error. We will try to rectify that error. Okay, let's just wait for it to run and then we will get the output. So you can see 2 is the output. Now if you will change any of the input, you will get the perfect output. Okay, so that's all from my side. If you like the video, please click on the like button. Please subscribe to our channel and share the video with your friends. I'll see you next time. Till then, keep coding. And if you also have any doubt, please ask us on our Discord channel. The link of the Discord channel is in the description box. I'll see you later. Bye bye.